Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the types of ions. Okay, types of ions. We have different types of ions during the fragmentation processes. The one is known as molecular ion, or in other words, it is also said to be as the parent ion. The second one is the fragment ions, and the third one is rearrangement ions, or fourth one is multi-charged ions and negative ions, and the sixth one is metastable ions. So these are the different types of ions that are produced during the analysis. ما لكن كنا نقول أنا دوت فيكي Okay, the first one is molecular ion. Molecular ion are parent ion. Molecular ion, when a molecule is bombarded with electron in high vacuum in mass spectrometer, it is converted into a positive ions by the loss of an electron. Okay. मॉलिक्यूलर आयन कब बनता है? जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ बेसिक प्रिंसिपल में, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब एक मॉलिक्यूल्स को हम रखते हैं मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में, तो एज ए रिजल्ट जो है मॉलिक्यूल्स वेपोराइजेशन होती है, फिर मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन होती है, मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल बनता है। मॉलिक्यूलर आयन कैसा बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन्स हम बम्बार्ड करते हैं, देखिए दिस इज द इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन्स को, यानी दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, this energy high energy electron, yani its energy must be equal in between 10 to 60 electron volt. तो इनकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगा। और एज ए रिजल्ट क्या होगी, मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करें, मीन इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कहते हैं, या पेरेंट आयन भी कहा जाता है। सो इसलिए कहते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल को बम्बार्ड किया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, तो ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके पॉजिटिव कैटायंस बन जाते हैं। So on bombarding an electron over the molecule, it converts the molecule into positive ions by the loss of an electrons. So these ions are called as molecular ion or parent ion, जैसा कि नजर आ रहा है। तो इसमें M shows the molecule, E is the electron bombarded over the molecule, M positive is the molecular ion, while these two are the electron loss. So the order of energy required to remove an electron is as follows. Like sigma electrons required very high energy to knock out an electron. Sigma electrons mean if there is a sigma bond between the molecules, ठीक है, दो एटमों के दरमियान जो बांड बना है और जिससे मॉलिक्यूल्स बनता है, अगर वो सिग्मा बांड हो, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, so that required a very high energy to form the molecular ion as compared to non-conjugated pi electrons. Non-conjugated pi electrons जो है, इसके लिए निस्बतन कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, and similarly non-conjugated electrons required more energy as compared to conjugated pi electrons. और इसी तरह
non-bonding or lone pairs of electron require very small energy. So इसका मतलब ये क्या कि हमारे पास lone pairs of electrons हो या non-bonding electrons हो तो हम low energy electrons से हम bombarding a low energy electron, we can remove such electron, we can knock out such electron in order to produce the parent ion or molecular ion. So this is the order of energy in order to produce the molecular ion. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस. मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो कौन सी जो है कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं. सो मॉलिक्यूलर पीक इज ऑब्जर्व्ड इफ मॉलिक्यूलर आयन रिमेन्स इंटैक्ट लॉन्ग इनफ. देखिए जब एक मॉलिक्यूलर आयंस जो है राउंड अबाउट डिटेक्टर के अंदर स्टे करे 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए, तो फिर जो है हम मॉलिक्यूलर आयन के लिए पीक को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो इफ अ मॉलिक्यूलर आयन स्टे फॉर अबाउट 10⁻⁶ seconds in a detector, we can observe a molecular peak for a molecular ion. Molecular peak, a peak that can be observed for a molecular ion. ठीक है. मॉलिक्यूलर आयन के लिए जो पीक हम ऑब्जर्व करते हैं उस पीक को मॉलिक्यूलर पीक कहलाता है. और वो कब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब मॉलिक्यूलर आयन जो है वो इंटैक्ट करे डिटेक्टर के साथ स्टे करे 10⁻⁶ सेकंड के लिए. दिस पीक गिव्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. ओके, म्यूट करें प्लीज बिलाल जी. जी. Okay, this peak gives the molecular weight of the compound. जो पीक मॉलिक्यूलर पीक जो है हमें क्या शो करता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. देखिए ये मैंने पहले मास स्पेक्ट्रम में आपको बता दिया था कि लास्ट पीक ऑफ एट द ऑन द मास स्पेक्ट्रम will said to be as the molecular ion peak, and molecular ion peak gives us information about the molecular weight. ठीक है, ये मैंने बता दिया था. अब मॉलिक्यूलर पीक जो है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो यही मॉलिक्यूलर पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक भी कहलाता है और ये हमें बताता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज यूजुअली द पीक ऑफ द हाईएस्ट मास नंबर. जी, मॉलिक्यूलर पीक का जो मॉलिक्यूलर वेट जो है या मास जो है वो सबसे ज्यादा होगा. एंड वी कैन ऑब्जर्व द मॉलिक्यूलर पीक एट द एंड ऑफ द मास स्पेक्ट्रम. मास स्पेक्ट्रम के एंड पे इस पीक को जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज तज़ीक ना ठीक शुभ. ओके 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 ओके. द मॉलिक्यूलर आयन has mass corresponding to the molecular weight of the compound from which it is generated. Thus the mass of the molecular ion, no need to ठीक है कि बस यही है कि मॉलिक्यूलर पीक जो है मास स्पेक्ट्रम के अंदर आखिरी जो पीक होगा मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाएगा और यही इसके नीचे जो वैल्यू लिखी होगी दैट विल शो अस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. ओके. Now, significance of molecular ion. What are the significance of molecular ion? Okay. What are the significance of molecular ion? मॉलिक्यूलर आयन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, क्या एडवांटेज. मॉलिक्यूलर आयन पीक गिव्स अस इंफॉर्मेशन. जैसा कि बिल्कुल यही एक सिग्निफिकेंस है कि जो भी आपको लास्ट पीक आपको नजर आ जाए दैट पीक इज फॉर द मॉलिक्यूलर आयन. एंड और इसके नीचे जो वैल्यू लिखी होगी डिजिट्स के अंदर वो मॉलिक्यूलर वेट को शो करता है. एंड दैट विल गिव्स अस इंफॉर्मेशन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. So molecular ion P gives the molecular weight of the compound. M by Z of the molecular ion is equal to molecular weight of the compound. M by Z of the molecular ion. यानी molecular ion के नीचे mass spectrum के अंदर एक वैल्यू लिखी होगी that is said to be M by Z or M by E वैल्यू, और वो वैल्यू होगी molecular ion P का molecular weight. क्योंकि molecular ion
के नीचे जो m by z वैल्यू होगी that will be equivalent to molecular weight of the compound. Let's suppose we have a C2H5 plus, ये मेरे पास molecular ion है और इसकी m by z या m by e वैल्यू क्या बनती है 29. किस तरह? Atomic number of carbon is 12, so 12 twos are 24, or plus atomic weight of hydrogen is 1. We have 5 hydrogen, so 24 plus 5, so that will become equal to 29. So molecular weight क्या हो जाएगा? m by e 29 mean कि molecular weight of the substance is 25. So gives the molecular weight of ethane. So ethane का molecular weight भी आप देख लेते हैं तो वो भी जो है यही 29 या 30 बनता है, वो 30 बनता है. So क्योंकि ये 1 डिग्री कम होता है. Next is now after discussing the molecular ions, now we have another ion that is said to be as the fragment ions. जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि एक मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो है 7 फ्रेगमेंटेशंस भी करते हैं. फ्रेगमेंटेशन से मुराद ये है कि हमारे पास जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होगा इनकी स्मॉल पीसेस में या स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या होगी? डिवीजन होगी. मॉलिक्यूल्स के स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और वो फ्रेगमेंट्स अगर उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज हो तो वो फ्रेगमेंट्स जो है फ्रेगमेंट आयंस कहलाएंगे, और अगर कोई चार्ज ना हुआ तो फिर फ्रेगमेंट्स रेडिकल्स कहलाएंगे. So क्योंकि we have a chamber that is said to as fragmentation chamber. Fragmentation chamber of the mass spectrophotometer में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो भी कंपाउंड्स है इनकी फ्रेगमेंटेशंस होती है. फ्रेगमेंटेशन से मुराद स्मॉल पीसेस में तकसीम होता है, इनके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और हर टुकड़ा जो है वो फ्रेगमेंट आयंस कहलाता है. और हर फ्रेगमेंट आयंस की जो है हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं, और इन फ्रेगमेंट आयंस के मॉलिक्यूलर मासेस को मिला के हम एक मॉलिक्यूल्स के बारे में या मॉलिक्यूलर फार्मूलास के बारे में बता सकते हैं. सो फ्रेगमेंट आयंस एक्चुअली क्या है? स्मॉल पीस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन को. मॉलिक्यूलर आयन को जब हम इनकी मजीद फ्रेगमेंटेशन यानी छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं तो वो पीसेस ऑफ आयंस जो है वो क्या कहलाएंगे? फ्रेगमेंट आयंस कहलाएंगे. जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मेरे पास M प्लस नॉट, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर आयन है और इस मॉलिक्यूलर आयन की हम फ्रेगमेंटेशन करके दो में डिवाइड कर देते हैं, M1 प्लस और M2. M1 प्लस जो है दैट इज सेड टू बी एज फ्रेगमेंट आयंस, जबकि M2 इज सेड टू बी एज मेटास्टेबल आयन. सो जब हम मॉलिक्यूलर आयंस को दो पीसेस में, 2 या 3 या 4 मुख्तलिफ में डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल तो तकसीम कर देते हैं, सो ये दो में डिवाइड हो रहे हैं. सो M1 प्लस एक्चुअली दिस इज द फ्रेगमेंट आयन. और मेरे पास जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन जाता है, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मेटास्टेबल आयन कहलाता है. सो ये अब मेरे ख्याल से डिफिनीशन अब थोड़ा सा इसको देखें, यानी इस स्केच को देख के हमारा डिफिनीशन जो है वो आसान पड़ जाएगा कि when the energy is given to the molecular ion during the electron impact, ठीक है, यानी जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट हो और साथ इम्पैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम एनर्जी भी वेरी हाई प्रोवाइड कर देते हैं. सो मॉलिक्यूलर आयन की फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी स्मॉल पीसेस में क्लीवेज होगा. तो मॉलिक्यूलर आयन की फर्दर क्लीवेज आकर करेगी, टेक्स प्लेस, एंड आयंस ऑफ लोअर मास नंबर will be obtained, and ions of lower mass number are said to be as what? Fragment ions. So जब अब molecular ions को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो molecular ions की फ्रेगमेंटेशन होती है, and as a result ion of lower atomic mass जो है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहे, ये लोअर एटॉमिक आयंस ऑफ लोअर एटॉमिक मास नंबर, ये जो है क्या कहलाएगा? ये फ्रेगमेंट आयन कहलाएगा. और प्लस M2 दैट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो आयंस ऑफ लोअर मास विल बी obtained and that is said to be as the fragment ions. So M1 plus is said to be as the fragment ions. और इसका यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रहा है. This is methanol molecular plus methanol plus. So this is a molecular ion
when we provide energy to the methanol plus, so this will be broken down, yeah, fragmented into CH2, yani one half a proton will be replaced from uh, CH3, and we as a result we will obtain CH2OH plus. So ये मेरे पास M1 प्लस हुआ, यानी कि ये मेरे पास फ्रेगमेंट आयन हुआ. सो अब ये है कि इसका इसका इसकी जो है मॉलिक्यूलर आयन की M/Z वैल्यू 32 है, लेकिन जब एक प्रोटॉन को रिप्लेस किया जाता है सो एक मास डिक्रीज होगा. सो यहाँ की यानी फ्रेगमेंट आयंस की M/Z वैल्यू दैट विल बिकम इक्वल टू 31. सो ये मेरे पास क्या है, ये M/Z वैल्यू जिसकी 31 है, एक्चुअली दिस इज द वैल्यू फॉर द फ्रेगमेंट आयंस. नाउ we have a third type of ions that is said to be a rearrangement ions. Rearrangement ions is also sometimes said to be as the fragment ions. इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, rearrangement ions में भी हमारे पास ions मॉलिक्यूलर ions की fragmentation होती है, और वो fragments पर अपने आप को rearrange करके दोबारा इसकी arrangement change हो जाएगी और हमारे पास एक न्यू आयंस बन जाती है जिसको रीअरेंजमेंट आयन कहा जाता है. ठीक है. सो रीअरेंजमेंट आयंस में भी क्लीवेज भी होती है, लेकिन साथ जो है रिफॉर्मेशन भी हो रही होती है. सो आफ्टर क्लीवेजिंग द मॉलिक्यूलर आयन एंड रीफॉर्मिंग अनदर स्ट्रक्चर्स, दैट इज सेड टू बी एज व्हाट, दैट इज सेड टू बी एज रीअरेंजमेंट आयंस. तो इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, क्लीवेज भी हो रहा होता है, रिफॉर्मेशन भी हो रही होती है, और एज ए रिजल्ट अ न्यू आयंस बन जाता है जिसको रीअरेंजमेंट आयंस कहलाता है. जैसा कि इसमें नजर आ रहे, रीअरेंजमेंट आयंस आर द फ्रेगमेंट आयंस whose origin cannot be described by simple cleavage of the bonds. न इसमें simple cleavage होती है in the parent ion की cleavage हो जाती है न सिर्फ, but are results of intramolecular atomic rearrangement, लेकिन साथ साथ क्लेवेज के साथ साथ मॉलिक्यूलर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगी, मीन की दोबारा रिफॉर्मेशन होगी, मॉलिक्यूल के अंदर रिफॉर्मेशन होगी, और हमारे पास एक न्यू जो है सेटअप बन जाएगा जिसको रीअरेंजमेंट आयंस कहलाता है, जैसा कि शायद यहाँ एग्जांपल में हो. हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, आप जी सर आ रही है. ओके 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 जी सर आ रही है. ओके ओके. There are probably due to recombination of fragments. देखिए मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले रीअरेंजमेंट आयंस में फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और वही फ्रेगमेंट्स दोबारा जो है रिकम्बाइन होके मेरे पास एक न्यू रीअरेंजमेंट वाला आयंस बन जाएगा जिसको रीअरेंजमेंट आयंस कहलाता है. ठीक है. सो फ्रेगमेंट आयंस में जस्ट ओनली फ्रेगमेंटेशन होती है और फ्रेगमेंट आयंस जो है दोबारा खुद को रीअरेंज नहीं करता, वो आयन ही रह जाता है. जबकि रीअरेंजमेंट आयंस में सबसे पहले क्लीवेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल occurs, fragment ions will be obtained, and these fragment ions then again rearrange itself to form a new ions that is said to be as rearrangement ions, जिसको यहाँ पे हम देख सकते हैं. एग्जांपल में prominent peak in spectrum of diethyl ether occurs at M/Z or M/E, M/Z, same thing, 31. इसमें क्या है, दिस इज ड्यू टू द आयंस ऑफ C3. देखिए मेरे पास है डाई इथाइल ईथर, एक तरफ भी इथाइल ग्रुप, दूसरे तरफ भी इथाइल ग्रुप, और दरमियान में क्या होगी, दरमियान में होगा व्हाट, ये किधर गया, अच्छा जी, ये मेरे पास दोनों तरफ जो है डाई इथाइल, एक साइड भी इथाइल दूसरे साइड भी इथाइल ग्रुप, दरमियान में ऑक्सीजन एज ए ईथर काम करता है. अब इसकी रीअरेंजमेंट क्या होगी कि एक साइड का जो इथाइल ग्रुप है वहां से एक CH2 ग्रुप जो है वो चला जाएगा. ठीक है. और मेरे पास मिथॉक्सी ग्रुप रह जाएगा. सो मिथॉक्सी यानी CH3O पॉजिटिव जो है ये क्या कहलाएगा, ये डिटैच हो जाएगा और खुद को एक दूसरी जगह पे अपने आप को अटैच कर लेगा. सो एक तरफ 3 कार्बन वाला ऑक्सीजन इथेरियल ग्रुप के साथ 3 कार्बन वाला ग्रुप, और दूसरी साइड पे 1 कार्बन वाला
ग्रुप आ जाएगा। सो मेरे पास डाई इथाइल ईथर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा उसमें मिथाइल प्रोपाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिसको रीअरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट, सो मिथाइल इथाइल ईथर तो मेरे पास पूरा मॉलिक्यूल बन गया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू अरेंजमेंट, मिथाइल इथाइल ईथर की जब फ्रेगमेंटेशन होती है, सो मेरे पास मिथॉक्सी आयंस जो है ये आयंस भी एज अ बन सकता है, और ये आयंस जो है रीअरेंजमेंट आयंस कहलाता है। वैसे तो अगर हम डाई इथाइल ईथर की फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो मेरे पास CH3CH2O पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट जो है वो बजाय इसके कि मिथॉक्सी आयंस बने, इथॉक्सी आयंस बने, मिथॉक्सी आयन भी बन सकता है। So this is due to the ions of this, which is formed by the rearrangement of ethoxy ions. So फर्स्ट स्टेप में इथॉक्सी आयन बन जाता है, लेकिन इथॉक्सी आयंस की रीअरेंजमेंट से जो है हम मिथॉक्सी यानी CH3O पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं, जिसको रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंट कहा जाता है। या and as a result of rearrangement of fragments, this will give us rearrangement peaks. Multi-charged ions. मल्टी चार्ज बाज औकात वैसे जितने भी हमने आयंस का जिक्र किया सारे जो आयंस है उसके ऊपर यूनी पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आया। ख्वा मॉलिक्यूलर आयन की हमने जिक्र की, फ्रेगमेंटेशन आयंस की हमने जिक्र की, और इसी तरह रीअरेंजमेंट आयंस की हमने जिक्र की। तो सब केसेस में जो है हमने देखा कि देयर वाज ओनली अ +1 चार्ज ओवर द आयंस। लेकिन मल्टी चार्ज आयंस ऐसा भी हो सकता है कि आयंस के ऊपर एक से ज्यादा +1 की जगह +2 +3 +4 या -1 -2 -3 चार्ज्ड भी आ सकती है। तो सच काइंड्स ऑफ आयंस आर सेड टू बी मल्टी चार्ज आयन, जैसा कि आप समझ सकते हैं। मल्टी मीन मोर देन वन, चार्ज्ड से मोर चार्ज। सो जिसके ऊपर जो है +1 की बजाय +2 +3 +4 या -1 -2 -3 चार्ज हो, तो such kinds of ions are said to be as multi-charged ions. But for your information, I would like to tell you कि आमतौर पे डिटेक्शन या एनालिटिकल पर्पस के लिए मल्टी चार्ज आयंस को जो है यूज नहीं किया जाता, प्लस यानी ज्यादातर, और पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनालिटिकल पर्पसेस के लिए आमतौर पे यूनी चार्ज्ड आयंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं तो उस सूरत में जो है +1 +2 चार्ज यानी मल्टी चार्ज आयंस को भी एनालाइज किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है ट्रिपली चार्ज या डबली चार्ज आयंस का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम है। So sometimes ions may also exist with 2 or 3 charges instead of usual single charge in the mass spectrum. These are said known as doubly or triply charged ions. So such kinds of ions are said to be as multi-charge ions. जैसा कि नजर आ रहा है, this is a molecular ion. जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं ओवर दिस, सो दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन will knock out another electrons from the molecular ions, which results the formation of doubly charged ions, and this M++ is said to be as multi-charged ions कहलाता है। इसी तरह से जो है M++, but under normal operating conditions most of the ions produced are single charge। जैसा कि मैंने कहा, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे आप हमारा जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो क्या बनाते हैं, सिंगली चार्ज आयंस बना देते हैं, और एनालिसिस भी हम सिंगली चार्ज आयंस की को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ दीज मल्टीपल चार्ज्ड आयंस, formation of these multiple charge ions heteroaromatic
इन हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। जी प्लीज, कौन है अपना कैमरा, सॉरी अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा जी, म्यूट यूर, ओके। दे आर आल्सो कॉमन इन इनऑर्गेनिक मास, ओके। ये जो मल्टी चार्ज आयंस जो है ये कॉमन होते हैं आमतौर पे हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए, और ये मल्टी चार्ज आयंस आर आल्सो कॉमन इन इनऑर्गेनिक मास स्पेक्ट्रम। जब हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इसकी मास स्पेक्ट्रम बनाना चाहे तो फिर हमें मल्टी चार्ज आयंस की जरूरत पड़ेगी और मल्टी चार्ज आयन बन सकते। इसी तरह हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स कि एनालिसिस के दौरान भी मल्टी चार्ज आयन जो है वो बन सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास गैसेस एनालिसिस हो, अगर हम लेट सपोज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह को एनालाइज करते हैं तो उस सूरत में भी जो है हमें मल्टी चार्ज आयंस बन सकती है, और इसके लिए भी मेजरेबल पीक्स जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव आयंस। Negative ions during देखिए we have different types of ions, तो negative ions भी होते हैं। So the positive ions predominate। आमतौर पे जो मास स्पेक्ट्रम है उसमें क्या है, एनालिटिकल पर्पसेस के लिए जो हम यूज कर आमतौर पे पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव में +1 चार्ज वाले आयंस जो है वो प्रीडोमिनेट करते हैं और जिसकी हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन समटाइम नेगेटिवली चार्ज जो एनालिटिकल पर्पस के लिए इनकी नेगेटिव आयंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो नेगेटिव आयंस की मास स्पेक्ट्रम में एनालिटिकल पर्पस के लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आमतौर पे पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रीडोमिनेट करता है, जबकि नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो आमतौर पे जो है रेयर केसेस में वो बन सकते हैं। So the positive ions predominate in electronic impact ionization। आमतौर पे predominate dominant जो है वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयन पीक्स होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो नेगेटिव आयंस आर नॉट पावरफुल। The negative ions is not very is not very useful in structure determination। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आमतौर पे यूनिपॉजिटिव चार्ज आयंस जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। मल्टी चार्ज आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज भी यूटिलाइज नहीं की जाती, और इसी तरह नेगेटिव आयंस भी नहीं यूटिलाइज किए जाते फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ compounds। The formation of nucleotide is very rare, but these can be produced in 3 ways। इसका इस्तेमाल नहीं है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, नेगेटिव आयंस का यूज नहीं है, अगर यूज है भी तो वेरी रेयर यूज है, मीन बहुत कम यूज होगा। और इन तीन तरीकों से नेगेटिव आयंस बना सकते हैं। लेट सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ए बी, जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं सो यहाँ पे ए और बी के दरमियान मॉलिक्यूल की फ्रेगमेंटेशन भी होती है और साथ आयंस भी बन जाते हैं। सो बी नेगेटिव इज अ नेगेटिव आयन। दूसरा तरीका यह है कि जब हम बम्बार्ड करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल ए बी, तो मॉलिक्यूल ए बी को ये मॉलिक्यूल जो है विल टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन, बजाय इसके कि मॉलिक्यूल की फ्रेगमेंटेशन कर ले या यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करे, यही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाएगा और एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, तीसरे तरीका ये है, तो साथ फ्रेगमेंटेशन भी हो रही होती है मॉलिक्यूल, और आयंस भी बन जाते हैं, नेगेटिव आयंस भी बन जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमने बम्बार्ड किया होता है वो इलेक्ट्रॉन्स भी वापस हमें मिल जाते हैं। सो these are the different ways for the formation of negative ions। नेक्स्ट वन इज मेटास्टेबल आयन। जैसा कि मैंने कहा था आपको, मेटास्टेबल आयंस क्या है कि जब हम एक मॉलिक्यूलर आयन को बम्बार्ड कर देते हैं और मॉलिक्यूल, तो हमारे पास M2 आयंस बन जाएगी जिसको हम फ्रेगमेंट आयंस कहलाते हैं। फ्रेगमेंट आयंस बनेगी और साथ जो है यानी आयंस की फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी, और साथ नन चार्ज पार्टिकल या रेडिकल्स जो भी यानी न्यूट्रल रेडिकल भी हमें हासिल हो जाता है। सो ये आयन जो है वो न्यूट्रल यानी नन चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल रेडिकल, ये क्या कहलाएगा, ये मेटास्टेबल आयंस कहलाएगा। So fragment of a parent ion, देखिए this is M1 plus, this is a parent ion fragment। जब हम इसको
this will give rise to a new ion. M1 plus give us M2 plus, यानी एक न्यू आयन हमें देगा, यानी M1 plus की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी. So this will give us a new ion. They'll give us a new ion that is said to be as daughter ion. So M2 plus, actually this is a daughter ion. Either an and और साथ हमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी देगा या रेडिकल भी देगा. So this is नॉन चार्ज पार्टिकल से मुराद है न्यूट्रल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर रेडिकल. So जब हम एक पेरेंट आयंस को डिवाइड कर देते हैं इनटू अ लोअर मॉलिक्यूलर वेट आयंस और साथ नॉन चार्ज पार्टिकल में जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसमें जो है ये क्या कहलाएगा, ये मेटास्टेबल आयन, यानी M2 प्लस जो है ये क्या कहलाएगा, मेटास्टेबल आयंस और डॉटर आयंस कहलाएगा. The resultant of the daughter ion, यानी M2 plus, will not be recorded at either M1 or M2 but at a position M star as such. यानी M2 जो है actually this is the molecular weight की जगह जो है ये peak appear होगी. Fragmentation processes. Okay. Now we have discussed the different types of ions which may be obtained during the analysis of the mass spectrophotometers के दौरान ये बन जाते हैं. लेकिन साथ we have a new topic that is fragmentation processes. अब fragmentation processes क्या चीज है? How fragmentation processes occurs? देखिए जब हम एक मॉलिक्यूल्स को बम्बार्ड कर देते हैं, जब हम मॉलिक्यूल देखें, चूंकि मैंने बता दिया था कि आमतौर पे मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को हम बम्बार्ड कर देते हैं बाई एन इलेक्ट्रॉन के जरिए. मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉन गन के जरिए, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, जो बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूलर, हमारे यहाँ जो है मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल बन जाता है. सो मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल उस सूरत में बनता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हम बम्बार्ड करते हैं इनकी एनर्जी इन बिटवीन 10 to 15 इलेक्ट्रॉन. सो 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी जो है यानी क्या हो 10 से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, जब हम बम्बार्ड करते हैं ओवर मॉलिक्यूल तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगी. लेकिन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब एनर्जी एग्जीड कर जाए इन बिटवीन 50 to 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब हम मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं फ्रॉम 10 to 15 से इंक्रीज करके 50 से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, तो फिर मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर आयन नहीं बनेगी बल्कि फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होती है. सो एक तो है प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन और एक है मॉलिक्यूलर आयन का बनना. तो जब हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं ओवर द मॉलिक्यूल ऑफ हैविंग एनर्जी इन बिटवीन 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे यहाँ जो है मॉलिक्यूलर आयन बनेगा. लेकिन इफ वी बम्बार्ड द इलेक्ट्रॉन ओवर द मॉलिक्यूल whose energy in between 50 to 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बजाय मॉलिक्यूलर आयन बनने के क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी. ठीक है. So bombardment of molecule by electron beam with an energy between 10 to 50 electron volt will results in the ionization of the molecule by the removal of one of the electron, which results the formation of molecular ion. And similarly, when the energy of the electron beam increased between 50 to 70 electron volt, so अब क्या होगा, these molecular ion achieve a high excitation. अब हमारे यहाँ जो molecular ion है that will achieve high excitation, और फिर क्या होगा, this will resulting in the breaking down into various fragments. This process is called fragmentation processes. तो जब एनर्जी जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्ड करें और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 to 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन
प्रोसेस होगी, यानी मेरे मालिक्यूल्स के फ्रेगमेंट्स बनेगी, मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, जिसको फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसेस कहा जाता है. Now, what are the different rules, general rules for fragmentation? So there are various rules of fragmentation processes. In today's class, I would like to discuss about the Stevenson's rules of fragmentations only. We have other rules of fragmentations also, but in today, we will discuss the last topic, that is Stevenson rules of fragmentations. Okay. ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टीवेंसन रूल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जब हम एक लार्ज चेन मॉलिक्यूल की फ्रेगमेंटेशंस कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स क्या होगा कि मेरे पास लेट सपोज इस पोजीशन पे ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये मेरे पास एक फ्रेगमेंट ये बन रहा है और दूसरा लेट मी ओके ओके जी, एडिट दिस. ओके जी, ये मेरे पास जो है इनके दो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे. तो एक फ्रेगमेंट जो है वो ये बन जाएगा और दूसरा फ्रेगमेंट जो है वो ये बन जाएगा. दो फ्रेगमेंट्स बनेंगे. अब मेरे पास कोई लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स हो, तो अब पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले हिस्से पे होगा? तो जो जिसको कह रहे हैं हाईली सब्स्टिट्यूटेड पोर्शन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, ये मेरे पास दो फ्रेगमेंट्स बनेगी. दिस इज फ्रेगमेंट नंबर 1 एंड दिस इज फ्रेगमेंट नंबर 2. और अकॉर्डिंग टू द स्टीवेंसन रूल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड फ्रेगमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन या लेस सब्स्टिट्यूटेड फ्रेगमेंट्स के ऊपर जो है वो एज अ रेडिकल रिप्लेस होगा. अब आप देख सकते हैं कि दिस इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड फ्रेगमेंट. सो एज अ रिजल्ट इस फ्रेगमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस फ्रेगमेंट ये वाला फ्रेगमेंट is a radical, or as this fragment is a highly substituted, so as a result this will carry a positive charge. So ये Stevenson rules है, when an ion fragments the positive charge, when an ion fragment, जब एक ions की fragmentations होती है, so the positive charge will remain on the fragment of lowest ionization potential. Fragments of lowest ionization potential से मुराद है highly substituted fragments. कौन से फ्रेगमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी? जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड फ्रेगमेंट होगा. तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड फ्रेगमेंट्स will possess a positive charge, while lower substituted fragments जो है will possess will replace be as a radical. So generally the largest substituent at a branch is eliminated most readily as a radical, वो replace होगा जो long chain है, और जो highly substituted है वो as a positive charge replace होगा. So because a long chain radical can achieve some stability by delocalization of the lone electron pairs. Please अपना microphone off कर दीजिएगा. In this fragmentation processes, positive charge remains on the more high substituted. आप देखें इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड फ्रेगमेंट्स के ऊपर लोकलाइज करता है, जबकि द वन विद लोअर, जबकि लॉन्ग चेन जो ग्रुप होगा जिसकी लेस सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है वो एज अ रेडिकल रिप्लेस होगा. ओके ओके जी. Now, Stevenson rules of fragmentation: double bonds, second one is cyclic structure, and third one is especially aromatic, heteroaromatic compounds. Aromatic compounds are heteroaromatic rings. Stabilizes the molecular ions and thus increase the probability of its existence. जी बिल्कुल ये भी है कि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड्स हो तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज होगा. इसी तरह अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज होगा. एंड स्पेशली अगर कोई एरोमेटिक या हेट्रो एरोमेटिक रिंग्स होता है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिलोकलाइज होगा, डिफरेंट रेजोनेंस बनेगी, एंड एज ए रिजल्ट जो है उसकी स्टेबलाइजेशन मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा.
ठीक है, जो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतने ही मॉलिक्यूलर आयंस की या मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बन जाती है। अब चूंकि डबल बॉन्ड्स के अंदर डिलोकलाइजेशन होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी डिलोकलाइजेशन हो रहा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में या एरोमेटिक रिंग्स में भी डिलोकलाइजेशन हो रहा होता है। सो दैट वाई सच, अगर डबल बॉन्ड्स के ऊपर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स